ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਖੰਡਾ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮੇਟਣ ਦੀ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਮੇਟਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ बड़े बड़े छतर धारी, छतर ही की छाया कई कोसलो चलत कै। बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्राप को दलत कै। मान से महीप ओ दलीप के से छतर धारी, बड़ो अबमान पुज दंड को करत कै। दारा से दलीसर दुर्योधन से मान धारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਗਰਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਵਕਤ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਉਸ ਬਿਤਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਆਉਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਮੌਤ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਖਿੜਾਓ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਤਰੇਲੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁੱਸਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 7 ਤੁਕਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, 6 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ, ਇਹ ਸਤਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮੰਤਰੰਗ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰਗ ਧਿਆਨੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨੈ ਗਿਆਨੰਗ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰਗ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਨੈ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਤੈ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੈ ਉਪਦੇਸ਼ੰਗ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਛਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰਗ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਟ ਲਖਿਆਨ ਪੂਰਨੰਗ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੁਵਜਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਚਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
जे सोचिए भी असी शब्दां दे प्रमाण लैके किसे कमाई वाले दे जीवन नूं बयान कर सकांगे। राड़ा साहब भी मैं बेनती करके आया, देखो साडा बौद्धिक तालक है। जे कहिए भी मैं किसे कमाई वाले दे जीवन नूं अपनी जबान नाल विखिया दियां, होवे कमाई वाला, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने क्या नहीं, ये मुमकिन नहीं। जिसने नाम नूं मन लिया है, कमा लिया है, नाम दा रूप बन गया है, ना उहदे बारे मुकम्मल बोलिया जा सकता है ते ना लिखिया जा सकता है। असी ये रोज बचन पढ़ने, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखण खार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन खोए, जे को मन जाने मन कोय। हुण गत दा अर्थ है अवस्था, उन्हां दे अंदर दी आत्मक उच्चता कोई विद्वान ना बोल सकता है ना लिख सकता है, ते मनोकल्पित नहीं। पर जिन्ने को लक्षण हजूर ने दसे, शब्द साडी अगवाई करदा है। महाराज कहंदे ने पूर्ण पुरख दा पहला लक्षण है कि उन्हां दी रसना उपर परमात्मा दा नाम टिक जांदा है। उन्हां दी जबान उपर गुर मंत्र परमात्मा दा बख्शिश कीता होया नाम टिक गया। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच कबीर साहब ने क्या, आद काल तो लैके अज तक, ते अज तो लैके जिन्नी देर तक जमीन फना नहीं हुंदी, जिन्ने भी भगत इस धरती ते आए, हर एक महापुरख दी जबान उत्ते परमात्मा दा सिमरन सी, ते जिन्हां ने सिमरन कीता ओ ही इस पदवी ते पहुंचे। पहला बचन है मंत्रंग राम राम नामंग। हजूर ने फरमाया कबीर मेरी सिमरनी, रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। पहला गुण, पहला लक्षण कि उन्हां दी रसना ऊपर परमात्मा दा नाम, ते कला वाचक नाम ही नहीं, ध्यानंग सरबतर पूर्ण है, जेड़ा परिपूर्ण परमात्मा थारियां थावां ते समाया है, हर वेले उस सर्व व्यापक परमात्मा दे ध्यान विच मगन। पहली तुक दे अखरी अर्थ ए, मंत्रंग राम राम नामंग, ध्यानंग सरबतर पूर्ण है, ते जदों सिमरन कीता ध्यान विच चले गए। अगला बचन है ज्ञानंग सम दुख सुखंग, जुगत निर्मल निर्वैरण। आ जिहड़ी ज्ञान दी गल कीती, इत्थे अखर नहीं ले कि उन्हां कोल इन्ने ग्रंथां दा ज्ञान है, इन्ने शास्त्र, इन्नियां सिमरतियां, इन्ने उपनिषद, इन्ने विद्वान उन्हां पढ़े। जदों ज्ञान दी गल आई ते अंदर दे संतुलन दी गल कीती, ओ ज्ञानी ने, ज्ञानवान ने ज्ञान की, उन्हां नूं पता लग गया दुख आया सुख आया। अपनी जिंदगी विच दुख ते सुख नूं हंडा के उन्हां दे अंदर दे संतुलन, अंदर दी अवस्था, दुख विच हीनता विच नहीं आए ते सुख विच खौमे विच नहीं आए। दुख ते सुख नूं बराबर हंडा जाना, ये उन्हां कोल अंदर दा ज्ञान है। क्यों मेरी बेनती फिर अर्ज करा, ज्ञान करके अखरां नाल अर्थ कर देने बड़े सौखे ने, पर उस ज्ञान नूं जिंदगी विच हंडाना प्यारिओ परम ज्ञान होवे। ज्ञानंग सम दुख सुखंग, दुख ते सुख विच समान बराबर। महाराज जी ने क्या, जुगत निर्मल निर्वैरण है, उन्हां दे जीवन दी जुगत अत दी निर्मल है, ते वैर तो रहत ने किसी नाल वैर नहीं कमाया। ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है दयालंग सरबतर जिया, पंच दोख भी वर्जत है। वो सारे जीवां ते दया करदे ने, पंजां दोखां नूं, पंजां वकारां नूं, वासनावां नूं उन्हां ने अपने जिउंदे जी रोक दिता है। संसार विच रहिंदे ने, पर संसार विच लपाएमान रहिंदियां होइयां विषय वासनावां विच खचत नहीं। सिंह साहब भी कह के गए कि महापुरख संसार विच विचरदा होया बंधना तो मुक्त है। अर्जुन ने गीता विच कृष्ण जी नूं प्रश्न किया, इनू संकीर्णता ना समझियो। अज भी मैं बेनती करके आया कि धर्म भरम की दीवार तोड़दा है, पर हैरानगी की गल अज असी धर्म के नां ते इन्नियां दीवारां, इन्नियां इट्टां लाई बैठे हाँ, इन्ने संकीर्ण हो गए। जबान नाल सर्व व्यापक की गल करने हाँ, पर जे सर्व व्यापकता विच किसी धर्म ग्रंथ की गल की जाए, वो साडे तो बर्दाश्त होनी बड़ी मुश्किल है। अज बचन सी कलगीधर
वेद पुराण सिमरत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक, बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल ना कबहू डोले। हुण इहदे अर्थ जे असी अपनी अंदर दी खंगता नूं पासे करके करिए, महाराज कहंदे ने वेद कहे, पुराण ने, शास्त्र ने, सिमरतियां ने, तेरा नजरिया वेखण दा होना चाहिए। तू उन्हां ग्रंथां विच भी केवल एक परमात्मा दे ज्ञान दी झलक नूं देख। हुण आपां एक ज्ञान दी झलक देखण दी थां ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। पर एक ज्ञानवार पुरख कोल भी इंद्रियां ने, ज्ञानी पुरख महापुरख वो भी इन्हां 10 इंद्रियां रही संसार विच वरत रहा है, पर ओदे ऊपर इस बाहरमुखी मैल दा लेप शेप कोई नहीं। उथे भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिता, कहन लगे अर्जुन कदी कच्छू कुम्मे वाल देखिए। ज्ञानवान पुरुष एक कच्छू कुम्मे की तरह जिंदगी जीन लग पैंदा है। सिर्फ एक उदाहरण है कि पंच दोख तो साधु अपने आप को बचा गया। किवें? कहन लगे कच्छू कुम्मे दे 4 पैर ने, ओदी सिरी है, जदों उन्हों लोड़ पैंदी है तुरन दी, विचरन दी, उदों अपने पैर भी बाहर कढ़ के बाहर मुखी हो के तुर पैंदा है। ओदी गर्दन, ओदी सिरी चौगिरदे झाकदी है, पर जदों अर्जुन ਉਹਨੂੰ लगता है कि मैनू हुण इथों किते खतरा भास रहा है, ਉਹਨੂੰ रब ने एक जुगत दिती है, वो अपनियां इंद्रियां इको दम अपने अंदर संकोच लैंदा है। इसे तरह पूर्ण पुरख विचरदा संसार विच सच एवे कि बाहर मुखी इंद्रियां कदी खोन नहीं देंदा। वो कच्छू कुम्मे की तरह जिथे नजर आउंदी पई है अंदर दी किसे दी वासना, उथे अपनी इंद्री संकोच के इंद्रियां नूं अंतर्मुखी हो जांदा। कच्छू कुम्मा तुरदा जरूर है, लोड़ पे अपने आप को संकोच लैंदा है। इसे नूं कबीर साहब जी ने एक बचन कहा, संतो मन पवनै सुख बनिया, किछ जोग प्राप्त गनिया, गुरद खलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोड़ी, मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे। भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा, चरम दृष्ट मूंद पेखै दिब दृष्ट कह, जगमगी जोत उन मनी सुध पावई, सुरत संकोचित ही बज्र कपाट खोल, नाद बाद पर अनहत लिव लावगी। अपनी बिरती नूं अंतरमुखी जदों महापुर करदा है, गुरमुखो भावें एक पासे वैश्या दा घर होवे, खिमा करियो, ते दूजे पासे दारू पीण वाला कोई बैठा होवे, कमाई वाला पुरख उन्हां विच विरचदा वरतदा होया भी अपने मन उते, अपने तन उते, अपने फुरनिया ऊपर कोई असर नहीं पैण दिंदा, पर उन्हां उत्ते भी दयालु हो जाता है। दयालंग सरबत्तर जिया, पंच दोख भी वर्जित है, ये तीसरा लक्षण है। महापुरख की खुराक की भोजनं गोपाल कीर्तनं, गोपाल दा कीर्तन परमात्मा की कीर्ति ओदा भोजन है। अल्प माया जल कमल रहता है। इस तरह संसार विच रहिंदे ने जिवें कमल दा फुल पानी विच रहिंदा है। इत्थे एक बेनती है, सियाणे विद्वान बैठे हो, कला कमल दे फुल दा एक पक्ष नहीं कि ओ जी पानी विच नरलेप रहिंदा है। कमल दा फुल बाणी विच बहुत सत्कार थावां लई वरतिया गया। कई बारी जदों शब्द पढ़ने हैं, जदों गुरु दे चरनां दी किसे नाल तुलना दिती गई, फुल तां गुलाब दा भी है, फुल गेंदे दे भी ने, फुल चंबेली दा भी है, पर गुरु दे चरनां दी तुलना कमल नाल कीती, कहन लगे चरण कमल। जदों हत्थां दी गल कीती ते शब्द वरत्या हस्त कमल, चरण कमल वर्गे, हथ कमल वर्गे। जदों नेत्रां दी गल कीती कहन लगे कि कमल नैन, कमल वर्गे नेत्र। जदों गुरमुखों मुख की गल कीती कहन लगे मुख अरबिंद, मुखारबिंद जिन्हों आप कहने, कमल वर्गा जिदा मुख है। जदों हिरदे की गल हजूर ने कीती
उदों कौल की गल, कौल शब्द फिर भी वरतिया। खैर इहदे परमार्थ विच अनेकां कमल खिड़न की गल भी की गई, पर कमल फुल की तरह महापुरख रहिंदा है। ये कला पानी विच निर्लेपता नहीं। गुरमुखो कमल फुल की पैदाइश चिक्कड़ विच है, पर कमल फुल ने दुनिया नूं दस दिता, जिस चिक्कड़ तो नफरत करके तुसी दूर जांदे हो, तुहाडे कोल खिच्चण की ताकत नहीं। मैं चिक्कड़ विच रहिंदा होया भी सुगंधी कोमलता ते महक पैदा कर सकना। चिक्कड़ विचों गुण प्रगट कर दिता। दूसरी बेनती, निर्लेपता एक पक्ष है, पर देखो बाणी विच बचन आउंदा है, कमल दा फुल जमीन ते वे ते सूरज आसमान विच। बाबा जी ने कहा कि सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। कमल दा फुल करोड़ा को सूरज तो दूर है, पर ना कमल दे फुल कोल किसी ने मशीन लाई, ना सूरज तो किसी ने तार लाई। कोई बाहर मुखी सानू कनैक्शन नहीं नजर आउंदा, पर सूरज की किरण निकलन की देर है ते कमल दा फुल इको दम खेड़ा बना बैठदा है। कमल दा फुल हजारां को दूर सूरज नाल अपना प्यार पाई बैठा है। महापुरख रहिंदा संसार विच है, पर याद रखो अंदर दियां गंढां उहदियां निरंकार नाल पईयां होईयां। रहिंदा मृत मंडल दे दायरे विच है, पर अंदर दी अवस्था तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए। ओ कमल फुल की तरह निर्लेप। ये चौथा लक्षण, सिर्फ अखरी अर्थ मैं अर्ज कर रहा। पंजवां है उपदेशंग सम मित्र छत्र भगवंत भगत भावनी। मित्र आ जाए दुश्मन आ जाए, महापुरख मित्र ते दुश्मन नूं एक बराबर जानदा है। इत्थे सिर्फ एक नुकता है कि महापुरुष लई दुश्मन कोई नहीं। जे असीं मैं शब्द वरते ने मित्र ते दुश्मन नूं, दुश्मनी दा फुरना लैके कोई आ जाए ते मित्रता दी भावना लैके कोई आ जाए, महापुरुष लई कोई मित्रता पैदा करे भावें दुश्मनी पैदा करे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई भी आ जाए उन्हें सारियां नूं इक्को जिहा प्रेमा भगती दा उपदेश देना। उपदेशन सम मित्र छत्र है। गुरु अर्जुन साहिब दे तां बचन भी ने, कहन लगे रुख नूं भावें कुहाड़े नाल कट लै, पर याद रखी रुख कट्टण तो बाद जिस दिन पानी विच तू डुबण लगेगा, जिस लकड़ नूं कुहाड़े नाल तू कट्टिया आरे नाल चीरिया, तेनू डुबदे कोई लकड़ दे तख्ते किश्ती बन के कहणगे तू तां मेरियां जड़ां विच कुहाड़े मारे, पर आ मैं तेनू डुबदे कोई नूं भव जावल तो इस समुंदर तो पार कर देना। साधु तां बुरा करन वाले दा भी भला कर जांदा ते सत है। महाराज जी ने कहा शस्त्र तीखन काट डारियो माना कीनो रोष, काजुआओं को लै सवारियो तिल ना दीनो दोष। फिर अगे एक बचन आउंदा चरण तलै उगाहे बैसियो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिनै उतारियो तीर। लकड़ कट्टण तो बाद भी कट्टण वालियां नूं पार कर दिंदी है। दयालंग सरबतर जिया पंच दोख भी वर्जतै, उपदेशंग सम मित्र छत्र भगवंत भगत भावनी। ते अगला लक्षण गुरमुखो पर निंदा ने स्रोत सरवणंग। पूर्ण पुरख कदी पराई निंदिया नहीं सुनता। वैसे तो चार पर शब्द ने बाणी विच जिन्हां ने सचमुच रब पराया बना दिता। वो जिथे चार पर आ गए ना, समझो ओ पार ब्रह्म की खेड़ तो दूर। एक पर तन, दूजा पर धन, तीसरी पर निंदा ते चौथा पर अपवाद। पर धन पर तन पर धन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटै। आवा गौन खोत है फुन फुन ए प्रसंग ना टूटै। ए जिदे अंदर एक आ जाए वो नहीं बंदा टिकदा, जिदे विच चारे आ जाए। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने ओदा प्रसंग ओदी साखी ओदी कहानी जन्म मरण दी कदी मुकदी नहीं। महापुरख पराई निंदिया भी अपनी निंदिया सुन के बंदा कई बारी तैश चाउंदा है, दूजे की निंदिया सुन के प्रसन्न हुंदा है। महापुरख पराई निंदिया भी अपने कन्ना च नहीं पैन देंदे। संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने जिहड़ी संत गाथा पुस्तक लिखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक महापुरखों का जिक्र है। संत बुंदियां वाले उन्होंने कहते सन। वो असल च पहला रास रचांदे रखे ते इत्थे कीर्तन सुनिया
ते आए अमृतसर भी सन इस बिरती नाल। कीर्तन सुनिया इन्ना अंदर टिक गया कि जान नूं चेती ना कीता। ते जे बाहर किसे पुछया भी की महसूस कीता है, ते उन्हां दी शब्द सन कि बाकी सब अवतार पीर पैगंबर में निंददा किसे नूं नहीं आए, ते समा पा के उपदेश दे के चले ले गए। कह लगे गुरु नानक साहब आए पर गए नहीं। उन्हें कहा आए पर गए नहीं, इहदा अर्थ की? कह लगे आए, अज मैनूं पता लगा हरमंदर विच कीर्तन दा रूप धारण करके बैठ गए। वो कीर्तन सुनना ते बुंदे उन्हां ना अपने कन दे कोल दो उन्न दे जिवें निआणिआं नूं फुम्मण जै पांदे ने पिंडां च, वो कन दे कोल लटकाए रखने। कीर्तन सुन के ना बाहर निकलना ते वो दोनों बुंदे कन्नां विच दे लैणे। सैर करके जे किसे पुछ लेना महापुरखो ये कन्नां विच बुंदे क्यों पाए जे? हो सकता कोई बंदा कर्मकांड ही समझे, पर मार्ग दा रस्ता ज्ञानियां वास्ते पहला भी कर्मकांड सी, अज भी कर्मकांड है, आने वाले समय विच भी कर्मकांड रहेगा। क्योंकि जिसने बच्चे नूं जन्म ही नहीं दिता उन्होंने प्रसूत की पीड़ा केवल पखंड ही जापदी है। जिसने लाल नूं खड़ाया गोदी च, उन्होंने पुछ के देखो कि प्रसूत की पीड़ा ते गर्भ पालना की है। कमाई वाला वो क्यों हर एक अगे निमरता नाल झुकदा है, ज्ञानी पुरुष नहीं झुकदा। उन्हां पुछना भी ये क्यों बुंदे लटकाई फिरदे हो? कहन लगे कन्नां दे कटोरियां राही अंदर गया बाणी दा अमृत, ते तां बुंदे लटकाए ने किसे दी निंदिया सुन के किते जहर दियां बूंदां ना अमृत तक चलियां जा। उन्हां दा नाम ही बुंदियां वाले संत पै गया। ते मेरा ख्याल इस श्लोक दी व्याख्या समझ लो कि फरीदा ए तन भौंकना नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा किती वगै पाउन। पर निंदा ने सरोत सरवणंग, पराई निंदिया भी नहीं सुनते। आप त्याग, अपना आप त्याग दिता, सगल रेणुकै सब दे चरना दी धूड़, खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध सवजने, जिन्हां दे 6 लक्षण। हालां जे इस दे आपां गुण गिणीए ना, ये 6 तो बड़े ज्यादा बनते। महाराज जी ने 6 तुकां दे के क्या भाई आ 6 लक्षण नहीं पूर्ण पुरखां दे, कमाई वालियां दे। जदों तेनू ये झलक पै ते तेरा अंदर झुक जाना चाहिदा है। दूसरी बेनती पिछले दिनां तों हर थां ते कीती है महापुरखां दे स्थान ते। प्यारिओ दुनिया दा रिश्ता, मस्कीन साहब एक गल बड़ी कोट करदे सन कि मापिਆਂ दा सुमेल, मां ते बाप दा सुमेल सुत नूं जन्म दिंदा है, शब्द ते सुरत, गुरु ते सिख इहदा सुमेल संत नूं जन्म दिंदा है। शब्द ते सुरत दा सुमेल संत पैदा करदा है। यही कारण जन्म साडा मापिਆਂ कर जरूर होया है, पर जिदन अमृत पान करने उस दिन क्या जाता है कि अज तो बाद तेरा जन्म सतगुरु दे घर विच होया है। इस घर च जन्म होया है। संत मां बाप कुख चो सुत नूं जन्म देंदे ने। महापुरखां ते गुरु दा घर, गुरु की संगत वो संत नूं पैदा करदी है। इत्थे सिर्फ एक दो बेनतियां कह के संपन्नता करा। रात मैं शब्द क्या सी दोहरान लगा। बादशाहां दे जिउंदे जी सिर ते छत्र झलदे झुलदे ने, पर मरण तो बाद छत्र किहड़ा झुलांदा देखिआ? बादशाह जिउंदा है ते कवि खलो के उन्हां दे कविता पढ़ते ने। गुरु ग्रंथ साहिब दा एक श्लोक है। बादशाह घरों निकलिया, पहला नगारा वजिया, उस तो बाद वाजे वजे, तूतियां वजियां, सिर उपर छत्र झुला दिते। ते जदों दरबार विच पहुंचिया ते कवि उठ के रड छंद विच ओदी सिफत, ओदी कविता, ओदे गीत गाउण लगे। दा अर्थ नगारे कोल ने, अज कोई खुशी नाल नगारे नहीं वजांदा। छत सिर, जिन्हां दे सिर ते छत्र झुलदे सन, अज छत्र कोल ने। मुर्दियां ते किन्ने छत्र झुलाया। पास दमामे छत सिर भेरी, तूतियां कोल ने, केड़ा वजाएगा अज खुशी च? भेरी सड्डो रड, रड छंद है। कवि रड छंद विच कविता कह रहे सन, अज कवि ने पर सिफत दे छंद नहीं। कहन लगे पास दमामे छत सिर, भेरी सड्डो रड, जाए सुते जीरान में, थिए अतीमा गड जतीमा दी तरह। ते एक विद्वान ने दे अर्थ कीते ने, बरसों रहा
जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शमियाना देखा। पर जिथे कमाई वाला बैठ जाए ओदे जान तो बाद भी सच्चा अमर, सच्ची पातशाही, सच्चे सेती राते, सच्चा सुख सच्ची वडियाई, जिसके से तिन जाते। महापुरख बंदगी करने वाला ओ पातशाह है। हो सकता कईयां नूं ये शब्द गवार ना बैठन कि देह लई शब्द पातशाह वर दिता। एक पासे कही जाने आ कि गुरु ग्रंथ साहिब दे बाणी अनुसार इतिहास होवे जो बाणी मन्ने, यही कहने हैं ना। ते दूजे पासे इको दम हो सकता कई सज्जन बैठे रिकॉर्ड भी करते होने, अज की बोलिया कल नूं प्रचारांगे। मैं गुरु की हजूरी च कहना, एक पासे कह रहे हैं इतिहास ओ जो बाणी मन्ने, गुरबाणी मन रही है कि संत है, पर अखौती विद्वान ढंडोरा ढंडोरा पिटी जा रहा। नहीं झूठ, संत तां गुरु ग्रंथ साहिब हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब तां संत पैदा करने वाला है। धन गुरु ग्रंथ साहिब ये बचन खीर ला बाबा तेजा सिंह डबल MA उन्होंने संत महाराज जी की जीवनी च लिखा। बाबा अतर सिंह जी कहते ने जेड़ा प्रचारक, जेड़ा कीर्तन करने वाला, हुण जे कोई सानू पुछे आपां तां प्रमाण संतां दे इकट्ठे कर लेने ना। गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पायन तग, नाल ही कह दिता हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। कदी किसी ज्ञानी ने यह नहीं सुनाया कि सत्सा संयम गयो मूड़ा एक दान तुझ कुथाएं लया, साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादा तेरा जन्म गया। कदी किसी कथावाचक ने प्रमाण नहीं जिलाया। धी दे फेरियां दे पैसे तू मुकर्रर कर रहे हैं, ये नहीं कदी तू सोचा। गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै बूझै सोए, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दर गए प्रवान। मेरी एक बेनती है, सच्चाई नूं स्वीकारिए। पहला भी पखंड सी, अज भी है, ते मैं बेनती करा रहना आने वाले समय विच भी है। पर सच्चाई तो अखां मीट जाइए। बाबा तेजा सिंह जी ने एक शब्द कहा सी कि संत शब्द जे कहिए भी कोई हुंदा ही नहीं, झूठ है जी। वो कहते सन जिस क्लास विच 25 विद्यार्थी पढ़ते ने ते बाहरों गया होया बंदा उस्ताद दे, टीचर दे, मास्टर दे सामने खलो के कहे कि इस क्लास विच कोई भी विद्यार्थी लायक नहीं। हो सकता है विद्यार्थी तां ना महसूस करन, पर टीचर दे पल्ले की रह गया, साल पढ़ाया ते एक भी विद्यार्थी लायक ना बन सकिया। गुरु ग्रंथ साहिब जुगो जुग अटल ने, उन्हां दी खजूरी विच कदी शब्द ना वरतीए कि कोई सिख नहीं। जे गुरु जुगो जुग अटल है तो सिख भी जुगो जुग अटल रहेगा। पर फर्क इन्ना कि जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसें रंग रोवें चुप्पी कर जाहें, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना। गुरमुखो आओ उन्हां महापुरखां नूं जिन्हां दी संगत दास ने कीती, आप विचों अनेकां बैठे ने। असलीयत वे उन्हां ने जिंदगी विच बहुत वड्डी एक तब्दीली पैदा की। अंदर दी शरदा मैनू अज तक याद है कि दसवंध की कथा की मैं, ये कलिया मैनू एक शब्द क्या साने, क्योंकि स्वीकारना चाहिए है कि कलिया मैनू एक शब्द क्या, ईमानदारी नाल दसी तू दसवंध कढ़ने। असलीयत वे उस शब्द ने उस दिन तो बाद कोई घड़ी नहीं ऐसी आउण दिती जदों कन्नां विचों बोल भुलिया होवे। कदी शरदा भावना की गल चलनी, ओढ़क दे बचन कहने, अपने गुरु प्रति कितनी भावना चाहिए है। देखो महापुरख बोलदा थोड़ा है। एक उर्दू का विद्वान कहता, कहने वाला कह गया दो खिचकियों में राजे दिल, कहने वाला कह गया दो खिचकियों में राजे दिल, लोग पीछे मुद्दतों तक गुफ्तगू करते रहे। एक दो वचन कर गया कमाई वाला, ते सदियां पर दो बचना उत्ते सैमीनार चली जाते। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे असी भावना नाल अपना नजरिया चेंज करिए, क्योंकि साडी सोच इन्नी को पुठी हो गई। इत्थे मैं तां शब्द वरत रहा, नेड़े सजन वाले भी सज्जन बैठे, क्योंकि दुनिया में सब तो सौखा है निंदिया करनी। एक चित्रकार ने, मैं अखीर सिर्फ 2 मिनट लेना, तस्वीर बनाई ते थले एक रजिस्टर रख दिता
ते नाल लिख दिता इस तस्वीर विच जेड़ा नुक्स लगे, जिथे घाट दिसे रजिस्टर विच अपने सुझाव लिख जाओ। शाम तक अद्धा रजिस्टर भरिया गया। जेड़ा लंघिया उन्हें क्या इथों आ सिर ठीक नहीं, दूजे ने क्या बाहां ठीक नहीं, तीजे ने क्या फेस ठीक नहीं, चौथे ने क्या रंग ठीक नहीं। उन्हें देखा भी हद हो गई, ये तो सारा पिंड ही चित्रकारां दा लगदा, क्योंकि नुक्स तां कढ दिते सारियां ने। उन्हें तीजे दिन कागज, बुरश, पेंसिल, ब्लेड ते रंग, सिर्फ कागज रख दिता लिख के, भाई जिन्ना कल नुक्स कड्डे सन मैं सारा मटीरियल रख चला, शाम तक मैनू पूरी तस्वीर बना दिया जे। कोई उत्थे फटकिया नहीं। गुरमुखो, शिकायत लिखनी बहुत सौखी है, बनाना बहुत मुश्किल है। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे साडे अंदर दी ओह बिरती बन जाए कि जिथे जाए बहिए, भला कहिए, झोल अमृत पीजै। बिरती बन जाए कि खम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोए, परनवत नानक तारे सोए। इतनियां बेनतियां प्रवान करियो। सिंह साहब तख्त श्री पटना साहब तो ज्ञानी इकबाल सिंह जी, बाबा लखबीर सिंह जी, महापुरख बाबा गुरविंदर सिंह जी, आ बीबी जी परमात्मा दी शब्द की गल करते हैं। वो अपने सामने बाबा कश्मीरा सिंह जी, बाबा वीर सिंह जी मद्दो के अनेकों महापुरख, बाबा हरी सिंह जी, जिन्हां जिन्हां दे दीदार पाए ने, सारियां दे चरनां च नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।